नमस्कार आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडियाज ग्रैंड लक्ष्मी विलास पैलेस इज 4 times बकिंगम पैलेस साइज द पैलेसेस ऑफ इंडिया एपिसोड 1 करली टेल्स। वाओ, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Did you know that we in India have a palace here that's 4 times the size of England's Buckingham Palace? वाओ, मौसम And holds one of the largest garba in the world. यहाँ पर होता है ये। ये कहानी है गुजरात की लक्ष्मी विलास पैलेस की, which was not ruled by Gujaratis, but by the Marathas. Lakshmi Vilas Palace, the grandest residential building in the world, सूरत है। stands as a testament to their lasting influence. Today, the royal family continue to live within its breathtaking walls. Wow. Let's step into their lives and discover the beauty and the history of this iconic palace that remains at the heart of Vadodara's royal heritage. Since we're heading to such a royal destination, our journey should match that elegance, right? That's why I have the bold new Hyundai Alcazar with me. Driving through the beautiful streets of Vadodara in the Alcazar feels effortless, mirroring the premium views of the palace itself. With advanced features like ADAS, the car enhances safety, making every drive worry-free. The Hyundai Alcazar truly elevates our experience, making it as remarkable as the heritage we're about to explore. કેમ છો? લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં તમારું સ્વાગત છે. I am Komal Pandey. Now you know me for all things fashion, but in this series, I'm going to blend my love for fashion with the timeless elegance of India's royal heritage. The Lakshmi Vilas Palace in Vadodara is massive. And when I say massive, I mean 550 acres of pure grandeur. Situated within 60,000 square feet area, a total of 170 rooms spread across 3 floors, a grand darbar hall, a cricket ground, and a golf course within its complex. The construction took 12 years and cost £180,000 at that time. Now I know what they mean by 4 times the size of the Buckingham Palace. बहुत खूबसूरत लग रहा है और रखा भी बहुत अच्छा है। It feels like I've stepped into a fairy tale. What feels like a fairy tale to me is home to a royal family of only 4, but served by an astounding 600 staff members. I'm curious to meet the queen of this grand palace, Her Highness Radhika Raje, who, believe it or not, is still discovering new corners of her very own humongous home. I'm still discovering many parts of the palace. Of course, I know most of it, but there's still some nook and corner that has escaped me even after all these years. So, I come from a principality, so I've lived and grown up in a palace, but of course not to the size and scale of this one. So I do remember my first memories of seeing this palace as we approached it as a newly married in the procession, Graha Pravesh, through my veil. So those memories are very, very deeply entrenched in me. The palace is divided into 3 sections, each with its own unique role. On the left is the Darbar Hall, जहाँ महाराजा अपनी public meetings hold करते थे. In the center is the grand entrance, which was only used by the Maharaja. On the right is the Janan Khana, also known as the ladies' wing, where no male visitors were allowed except for the Maharaja. और पब्लिक पोर्च के नॉर्थ साइड पर है रेड सैंडस्टोन के पिलर्स, जिन पे कार्व्ड है एक लायन और रैबिट representing the Maharaja protecting his people. I'm curious to know why it's called the Lakshmi Vilas Palace.
If it is a male child, he will automatically become the next heir of this place. But unfortunately, it was a female. So nobody was here. Then Maharani asked boys from Maratha to this place. Maharani was interviewing all the boys, and Maharani asked this person, Gopal Rao. He told Maharani that I wanted to rule Baroda. She adopted him as her son and put the name of Maharaja Sayaji Rao III. He built this palace in 1878 and Lakshmi Vilas Palace because Maharaja got married in 1880. The wife was Lakshmi Bai. 1881 में मेजर चार्ल्स मंट, जिन्होंने इस पैलेस को डिज़ाइन किया था, ने डर से अपनी जान ले ली। उनको लगा कि ये डिज़ाइन गलत है और ये पैलेस कभी भी गिर सकता है। उनके मरने के बाद कंस्ट्रक्शन को फिर भी जारी रखा गया और इस पैलेस को उन्हीं के डिज़ाइन पर बनाया भी गया और आज 132 साल बाद ये पैलेस अभी भी खड़ा है। Sandstone from Agra, Karara se marble, and a lot of local Gujarati craftsmen worked tirelessly on all the intricate carvings around the palace. Royals and their weapons share an inseparable bond. And Pratap Shastragarh, where I'm standing right now, showcases a remarkable collection of royal armament. Among the noteworthy pieces here are the Navdurga sword and the Panchkula talwar used by Guru Gobind Singh Ji, and also the iconic talwar of Aurangzeb. Nagin sword. Nagin is one of the poisonous snake. It is on the shape of that, like the Nagin only, because when the fighting was going on, they will put some poison on the edge of that sword. So like that, they will just touch the person will die immediately. As you walk through the corridors, you'll see a lot of carvings of the sun and cow on the pillars. These symbols represent that the Gaikwads are Suryavanshis linked to the sun god. और ये वही गद्दी है where the kings would be crowned in the grand Raj Abhishek ceremonies, marking the beginning of their royal reign. पहले ये इमारत राज परिवार के बच्चों के लिए स्कूल हुआ करती थी, and now it showcases an incredible collection of art and history of the Maratha dynasty. The museum has paintings of the European Renaissance, Rococo शैली, संगमरमर की मूर्तियां and over 30 original paintings by Raja Ravi Verma, जिसमें से कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य भी शामिल हैं। Our family is a foodies family. So the Gaikwads, of course, like all royal families, had their own culinary traditions. The Gujarati food is also very much part of our diet. We have the khati dal, the Gujarati dal. We have dal dhokri. So there is this element, and of course the huge big question: where does Puran Puri come from? Is it a Maratha dish? Is it a Maharashtrian dish? Is it a Gujarati dish? So we of course love Puran Puri, and it's very much a part of our diet. Maharani Radhika Raje then took me to her Gazra Cafe, a one-of-its-kind inclusive cafe run by the LGBTQ community. Food is amazing. I think I can indulge right now and burn off all those calories later at night. Moti Bagh Cricket Stadium. Some of the best matches have been played here, but when Navratri rolls around, the stadium transforms, with special rights reserved for over 40,000 people from across India who come here to dance and celebrate Garba in royal style. I'm
all decked up, ready, and I'm going to go have a blast at the Lakshmi Vilas Heritage Garba. I also have a few of my friends from Vadodara joining me. And a drive for the day is the bold new Hyundai Alcazar. And we're about to right now put on some music and already start jamming. Hey, hello. Iski second row captain seats with seat mounted armrests and a thigh cushion extension ensure a luxurious and comfortable experience. Because वहाँ पे जाके sweat तो करना ही है. And especially when you're Right? wearing such heavy stuff. Exactly, especially when you're wearing makeup. So comfy. Yes. This is so wonderfully done. It all begins with a sacred puja, setting the tone for what's to come. Then everyone moves together in circles, barefoot on the earth, अच्छा staying दुपट्टा close ना। to their roots, literally and spiritually. The rhythm of the dhol and the claps fills the I air, don't and in the know. iconic बहुत Mutaba ज़्यादा। Stadium, one of the largest Garba celebrations in the world comes alive. It's not just a dance, it's a feeling, echoing the spirit of Navratri. आज का दिन बिल्कुल एक सपने जैसा था. वडोदरा का ये जून सिर्फ एक पैलेस नहीं, it's a living reminder of the royal past. नवरात्रि की एनर्जी, गरबा का जॉय और यहाँ का रॉयल वाइब सब मिलकर एक कंप्लीट रॉयल एक्सपीरियंस बनाता है. एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा. So ये थी लक्ष्मी विलास पैलेस की कहानी, a place where history, culture and modernity come together. Stay tuned for more stories that celebrate heritage. This journey has taken us through time and tradition here at the Lakshmi Vilas Palace. We'll explore more fascinating palaces ahead. So stay connected with us as we delve into India's royal heritage. Until next time, this is me, Pratik Patil Babbar, signing off. भाई आज के टाइम में ना बहुत सारे लोगों को जो मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो अट्रैक्ट करता है, लुभाता है अपनी तरफ, लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि पुराना स्ट्रक्चर जो है ना उसमें जो काम हुआ था ना, उसमें जो डिटेलिंग होती है वो आज के टाइम में मेरा ख्याल है अगर करने कोई बैठे ना तो वाकई जहाँ पर आपको आज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 साल लगते हैं ना तो वहाँ पे आपको 20-25 साल ही लगेंगे उसे बनाने में. बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट ही बहुत डिफरेंट था. पुराने टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जितना उसमें हमें कारीगरी नजर आती थी, अभी भी हम ऐसे मॉडर्न स्ट्रक्चर देखते हैं जो को देखकर आप एकदम से दंग रह जाते हो कि यार ये कितनी खूबसूरत, लेकिन वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हम लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं उतनी नज़र आती. हाँ. बट जो पुराना स्ट्रक्चर है ना, मैंने देखा वो एक उसमें जो ट्रेडिशन का एसेंस आपको मिलता है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है. और मुझे इंडिया की बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जितने भी पैलेसेस हम देखते हैं, मतलब अगर देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जिस तरीके से जो रॉयल फैमिलीज थी और उनकी जो जितनी भी जगह थी उनको बाद में गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक तरह से अलायंस किया उन्होंने और मर्ज हो गई ना, मतलब कि रॉयल्टी जो उनकी जमीन थी ना वो हाँ. तो सारी मर्ज होगी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन पैलेसेस उनके पास जो है वो रहने दिए गए. बाद में उन्होंने उन्हीं पैलेसेस से होटल इंडस्ट्री चलाई. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. एक तो देखो मेंटेन कितना अच्छा रखा हुआ है, और सिर्फ मैं इस पैलेस की बात नहीं करूँगी, आई थिंक इससे पहले जो हम लोगों ने राजस्थान में पैलेस देखे हुए हैं उसमें भी आप ये देखो कि लोगों के लिए एक अलग से उन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है कि जहाँ पर लोग जो है वो पुराने टाइम की जो भी उनकी चीज़ें हैं जैसे गाड़ियाँ हाँ. और फिर उसके बाद जिन हथियारों के साथ वो जंग लड़ा करते थे उन सब चीज़ों को किस तरीके से एक म्यूजियम की फॉर्म में दिखा दिया गया है कि लोग जो है वो हिस्ट्री से भी आप कह लो कि रूबरू होते हैं
और उसके साथ साथ जो इतनी खूबसूरत मैं कहूँगी कि आपको एक आर्ट वर्क जो है वो आपको नज़र आता है, तो लोग उससे भी मैं कहूँगी कि लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने राजस्थान में जो है वो उमेद भवन जो है वो देखा था, अगर आपको याद हो, और आज जो है हम ये जो है ग्रैंड पैलेस आई जो थिंक है हमने वो, मैसूर का भी पैलेस देखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता हाँ है। बिल्कुल जो है वो देखा हुआ है। लेकिन जो है ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े पैलेसेस आपको देखने को मिलते हैं, बाहर से आपको एक ही कलर में वो जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो नजर आती है, या वो टाइम के साथ साथ जो है उसका एक कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जो थोड़ा सा रस्टिक कलर आपको बिल्कुल नजर आता है, वो बड़ा कलर जो खूबसूरत है लगता हाँ है। आना शुरू हो जाता है। लेकिन अंदर की बात करना, अंदर हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का एक जो कम्बिनेशन जो है वो बनाया होता है, जैसे बीच में गोल्डन भी होता है, ब्लू भी होता है, फिर शीशे जो बीच में लगाए जाते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है वो इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं उनमें भी अलग अलग रंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो मुझे लगता है इंटरनली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बना देता है। इसे देख के जो ना, मुझे अगर आपको याद हो, हमने एक वाइट हाउस देखा था वहाँ पे गुजरांवाला में, वो हालांकि बिल्कुल ही तबाह बर्बाद जो है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि अगर इसे मेनटेन किया हो ना, इसकी खूबसूरती जो है ना वो एक अलग लेवल पर जो है वो आपको नज़र आए। फिर उसके बाद एक उमर हयात पैलेस है चिन्नौर में, वो अभी काफ़ी ज़्यादा मेनटेन्ड है। तो आप देखते हैं ना तो सेम आपको यही चीज़ें कि भाई अंदर एक कारीगरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, वुड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। तो मुझे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, या पुरानी चीज़ें जो उनकी यही चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है कि अगर दीवारों पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, या वो नक्शो निगारी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उससे यार, सही है, नक्शेकारी बोलते हैं। हाँ, वो जो हुई है वो बहुत खूबसूरत लगती है। और मुझे उससे भी ज़्यादा चीज़ ये लगती है कि जितना भी काम हम देखते हैं, जो भी आर्ट वर्क हमें नज़र आता है, उसका कुछ मतलब होता है। हाँ। मतलब अगर मूर्तियाँ बनी हैं या कोई भी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है, इनफैक्ट अगर मैं मतलब सीलिंग की बात करूँ वो बहुत खूबसूरत है, फ्लोर की बात करूँ उस पर आपको एक डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है दरबार की, मतलब जो स्पेशली हमने इस दरबार में भी ये चीज़ देखी है कि दरबार में वो जो एक झरोके टाइप नहीं बने होते, लाइक ऐसे, आई डोंट नो उसको एक्चुअल वर्ड क्या, क्योंकि ऐसी सारे मैं कहूँगी कि इसी तरह का वुड वर्क और इसी तरह की कारीगरी जो आप लाहौर के पुराने, अब तो बहुत कम जगह ऐसी रह गई हैं, बट स्टिल आप कुछ इमारतें ऐसी देखते हो जहाँ पर ऐसे बाहर वाली साइड पर आपको घर के बाहर जो बालकनी होती है वो इस तरह की बनी हुई नजर आती हैं। और दो मैं कहूँगी कि एक एक पीस ही वो रह गया हुआ है लकड़ी के। अच्छा जब मौसम होता होगा बैठते होंगे ना लोग वहाँ पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि काम इस तरह का काम अब नहीं होता, अब तो इतना निकम्मा काम होता है। और वो मैं घरों की बात कर रही हूँ, तो पैलेस है ना, घरों की बात कर रही हूँ, घरों में भी लोग कितना उम्दा काम करवाया करते थे। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे वैसे कैफे भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही एस्थेटिक लुक आ रही थी कैफे की भी। और फिर उसके बाद गरबा माय फेवरेट, और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द मुझे गरबा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, मैं भी उस एनर्जी, उस वाइब को फील कर सकूं और इंजॉय कर सकूं उन मोमेंट्स को, क्योंकि आपको एक अलग ही मैं कहूँगी कि ये सब चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। और बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत मज़ा आया है, और आप ज़रूर बताइएगा। अभी मुझे लगता है और बहुत सारे पैलेसेस होंगे जो कि हम कहेंगे हिडन जेम हमारे जैसे लोगों के लिए होंगे, क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता। और इंडिया में जिस तरीके से उनको मेंटेन रखा हुआ है, मैं कहूँगी कि आई एम श्योर कि और भी बहुत सारे पैलेसेस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पैलेस के बारे में पता था और क्या यहाँ पर विजिट करने दिया जाता है, ये भी ज़रूर मेरा ख्याल है दिया जाता होगा। बाहर मैंने देखा था लोग खड़े हुए थे काफी। हाँ, एक क्लिप जो शेयर हुआ था। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया। और आई एम श्योर कि यहाँ पर जो होटल, हाँ वो भी, ये नहीं मुझे आइडिया, वो भी शायद होगा, मैंने लोगों को देखा ज़्यादा रूम्स हैं। तो ये भी ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ज़्यादा में ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।